नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो उसको डिस्कस करने से पहले कुछ एक दो चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी जरूरी है, जैसे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। So we have three elementary row operations. First one is we can interchange any two rows, like interchange any two rows. So suppose we have ith row which is noted by Ri and jth row which is noted by Rj. So we can interchange these rows. Second is we can multiply any row by a non-zero number. So suppose we have ith row Ri and have non-zero numbers alpha. So we can always multiply any row by a non-zero number alpha. So the result will be alpha Ri. The third elementary row operation is we can add a scalar multiple of any row to any other row. So suppose we have to add the ith row with the scalar multiple of jth row. So we can also use this operation. So we have these three row operations which are called elementary row operations. तो ये तीन जो important rule है हमारे, इनकी हम use करेंगे in solving the system of linear equation. So there are certain methods to solve the system of linear equation. In those methods, first one is very important one, that is Gauss elimination method. तो वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार इक्वेशंस का अपना सिस्टम लिख लेते हैं। तो सपोज वी हैव m इक्वेशंस इन n unknowns, और जो हमारी इक्वेशंस हैं वो है a11 x1 a12 x2 and so on a1n xn equal to b1. Second one is a21 x1 a22 x2 and so on a2n xn equal to b2 and so on. The mth row is am1 x1 am2 x2 and so on amn xn equal to bm. So this is the system of equation which is given to us. So now we have to find out the solution of this system of equation. यहाँ पर हमारा जो a I j है, they are the coefficients, और I and j running from 1 to n, they are the known coefficients. जो हमारा राइट साइड है bi, this is also I is running from 1 to m because we have m number of equations. So they are the known right hand side. And xi are the unknowns. We have n unknowns, so I is running from 1 to n, they are the unknowns. ठीक है, अब यहाँ के बाद हम करेंगे क्या, हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एक मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे. तो इन मैट्रिक्स नोटेशन we will write down the system of equation in the form ax is equal to b, जहां पर हमारा जो a है that will be the coefficient matrix a11 a12 a1n a21 a22 and so on a2n
am1, am2, and so on, amn. So this is the coefficient matrix which is denoted by capital A. X is our column vector of the unknowns, x1, x2, xn, and B is the vector of right hand side, b1, b2, bm. So as this can be clearly visible, the matrix is of order m cross n. This is n cross 1 and this is m cross 1. ठीक है, अब यहाँ इस इतना करने के बाद अगला स्टेप जो हमारा रहेगा, नाउ वी विल डिफाइन अनदर टर्म which is denoted by this, and we write this as a matrix of this form. So यहाँ पर जो हमारी वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब है कि हम एक मैट्रिक्स A है उसको दूसरी मैट्रिक्स B के साथ मर्ज कर रहे हैं. So this matrix is called augmented matrix. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अपनी कोफिशिएंट मैट्रिक्स को और हमारी जो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स है यानी कि जो कॉलम वेक्टर है b1, b2, bm, उसको मैट्रिक्स A के लास्ट कॉलम के रूप में लिख लिया. ठीक है, इतना करने के बाद अब जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी A11, A12, A1n और यहाँ पे आ जाएगा हमारा B1, A21, A22, A2n, यहाँ आ जाएगा B2 and so on. This is AM1, this is AM2 and so on, AMN और यहाँ पे आ जाएगा BM. अगर आपको लगता है कि कुछ कंफ्यूजन हो सकता है तो आप यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है. ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हमारा स्ट्रक्चर तैयार है. अब हमारा मेथड आता है, द मेथड इज गॉस एलिमिनेशन मेथड. So this is the method to solve the system of linear equation. ये एक मेथड है, इसके अलावा और भी मेथड है, वो हम बाकी वीडियोस में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर गॉस एलिमिनेशन मेथड हमारा करता क्या है कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था Ax इज इक्वल टू बी, जिसकी हमने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखी थी ये. इस पर हम गॉस एलिमिनेशन लगाते हैं. और ये हमारा मेथड जो है वो इस मैट्रिक्स को एक दूसरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता है यू जेड, जहां पर यू है हमारी दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और जेड जो है वो हमारा जो वेक्टर v था वो जो करस्पॉन्डिंगली चेंज होगा दैट विल बी अवर मैट्रिक्स जेड. ठीक है, इतना करने के बाद में यहाँ तक हम जब पहुंच जाते हैं यू जेड तक, तो इसके बाद में हम जो सेकंड स्टेप यूज करते हैं दैट इज द, सो दिस इज द स्टेप 1. नाउ इन द स्टेप 2 वी यूज बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड. और वो क्या होता है ये हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे. ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम करते क्या है, ऑपरेशंस हमारे किस तरीके से रहते हैं वो हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, तो हमारे लिए समझना आसान रहेगा एज कम्पेयर टू इन जनरल मेथड. So let's consider one example. So पहला एग्जांपल जो हम लेते हैं, this is 3x1 plus 3x2 plus 4x3 is equal to 20. Second equation is 2x1 plus x2 plus 3x3 is equal to 13. Last equation is x1
plus x2 plus 3x3 is equal to 6. So we have to use the Gauss elimination method to solve this system of equation. तो जैसा मैंने अभी बताया, पहला हमारा जो काम रहता है वो रहता है हमारा इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखना, देन उसकी ऑगमेंटेड फॉर्म बनाना। तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्टली ऑगमेंटेड फॉर्म लिख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जो हमारी ऑगमेंटेड फॉर्म रहेगी, फर्स्ट कॉलम विल बी 3 2 1 3 1 1, this is 4 3 3, the last one will be 20 13 6। मैंने जो वर्टिकल लाइन थी उसको ओमिट कर दिया है, अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो मोटिव था गॉस एलिमिनेशन मेथड में वो ये था कि हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को चेंज करते हैं वो इस तरीके से कि जो हमारा फर्स्ट 3 कॉलम्स जो हमारे ए को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हमें चेंज करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, यानी कि इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको हमें 0 बनाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे इस चीज को हम बोलते हैं पार्शियल पिवोटिंग, ठीक है। पिवोटिंग क्या होती है वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, इसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले A11 एंट्री के लिए देखते हैं, A11, और वो अगर वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। अगर किसी केस में वो जीरो हो रहा है तो हम क्या करते हैं, रो इंटरचेंज करते हैं, जो हमारा बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसकी हेल्प से, यानी कि किसी भी दूसरी रो जिसमें फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे ले आते हैं और इस वाली रो को हम उसकी जगह पे पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब हमारा काम है यहाँ पे 2 को 0 बनाना है, यहाँ पे 1 को 0 बनाना है और ये वाला 1 0 बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं A12 एंट्री से, सॉरी A21 एंट्री से। हम इन जनरल जो ऑपरेशंस लगाते हैं वो ध्यान देना, यहाँ पे करते क्या है, यानी कि हमें R2 चेंज करना है और R3 चेंज करना है। अब R2 की जगह पे हम क्या रखें और R3 की जगह पे क्या रखें, ठीक है। तो R2 को चेंज करना है तो R2 माइनस, अब माइनस में अब हमें करना क्या था, इसको 0 बनाना था, तो हमेशा ध्यान देंगे तो करेंगे क्या, 2/3, या फिर हम कह सकते हैं अगर इन जनरल लिखें तो यहाँ पर पे A21 को हमें 0 बनाना है, A21 अपॉन A11, और जो हमारी पिवट वाली रो है यानी कि फर्स्ट रो उसके एलिमेंट्स R1। तो जब इस ये हो गया, अब इस वाले केस में जब हमारी थर्ड रो है तो R3 माइनस यहाँ पे A31 को हमें 0 बनाना है अपॉन A11 R1, दैट इज द पिवट रो। तो ये वाले जो हमारा रूल है ये इसको हमेशा याद रखना है, इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम क्या मल्टीप्लाई करें क्या माइनस करें। तो अब ये से स्पेशल केस था ये वाला, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, यहाँ R2, तो R2 माइनस A21 इज अवर 2/3 R1, R3 की जगह हम रिप्लेस करें R3 माइनस 1/3 R1, ठीक है। तो जब ये यूज करेंगे तो हमारा होगा क्या, ठीक है। जब हमारा ये करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, करते हैं। So let's, this matrix will be the similar matrix. So the first row will be 3 3 4 and 20. Now इसको हमें एज इट इज रखना है, तो ये हो गया हमारा R2 यानी कि 2 माइनस 2/3 इंटू 3, ये क्या हो गया हमारा 0, ठीक है। अब इसके साथ में ये वाला एंट्री भी चेंज होगा, अब यहाँ पे क्या था 1 माइनस 2/3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा -1। अब ये वाला है तो 3 माइनस 2/3 इंटू 4, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस 8/3, दिस इज 1/3। सिमिलरली अगर आप यूज करोगे तो ये हो जाएगा -1/3। अब ऐसे ही ऑपरेशन अगर R3 पे आप लगाओगे तो ये हो जाएगा 0,
0, 5/3 और ये आ जाएगा आपका -2/3। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा मुझे लगता है। तो अभी आप देख सकते हो कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो एक, जो मैट्रिक्स ए थी हमारी, वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज हो चुकी है। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो हमारे, वो है 3, -1, 5/3, और जो बिलो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0, 0 हो चुके हैं। तो अब हम यूज कर सकते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब उसमें हम करते क्या है, हमारा जो सिस्टम है इस मैट्रिक्स को फिर से इक्वेशंस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक, तो लिखते हैं क्या होगा, 3x1 प्लस 3x2 4x3 इज इक्वल टू 20। यहाँ से हमें मिल जाएगा -x2 प्लस 1/3x3 इक्वल टू -1/3, और जो लास्ट वाली इक्वेशन है हमारी वो हमें दे देगी 5/3x3 इज इक्वल टू -2/3। तो बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, बेसिकली हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, और वो कहाँ से करते हैं, लास्ट इक्वेशन से, बैक यानी कि लास्ट से। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो हमारी लास्ट इक्वेशंस है वहाँ से हमें x3 की जो वैल्यू मिल रही है, आराम से मिल रही है, वो -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। तो यहाँ से हमें x3 की जो वैल्यू मिल गई वो आ गई हमारी -2/5। ठीक है यहाँ तक। तो ये होगी x3 की वैल्यू। अब आप देख सकते हो इससे जस्ट ऊपर वाली जो इक्वेशन थी ये, इसमें दो ही वेरिएबल थे x2 और x3। तो हम यहाँ पे x3 की वैल्यू अगर पुट कर दें तो हम x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 1/3, x3 की वैल्यू -2/5, दिस इज इक्वल टू -1/3। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x2 इज इक्वल टू 1/5। नाउ वी हैव द वैल्यूज ऑफ x2 एंड x3। इन दोनों की हेल्प से हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। x1 जो हमें मिलेगा दैट विल बी 7। तो ये हो गया हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो ये वाला जो गॉस एलिमिनेशन का एग्जांपल था, इसमें हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी कि x1, x2, x3 की एक सिंगल वैल्यूज मिल रही है। तो ये जो केस है वो है हमारा यूनिक सॉल्यूशन का। तो आप जैसा कि जानते ही होंगे कि हर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास तीन केस होते हैं। पहला एक यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, और जो लास्ट होता है हमारा वो होता है नो सॉल्यूशन का। तो हमने अभी जो डिस्कस किया वो था हमारा केस यूनिक सॉल्यूशन का।